Okay, welcome back once again to all my dear students. Today we are going to discuss about the hybridization as well as the hybrid orbitals. Hybridization किसको बोलते हैं और hybrid orbital किसको बोलते हैं, देखते हैं. चलो next point, that is the hybridization and hybrid orbitals. Hybridization and hybrid orbitals. ओके चलो, तो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं. व्हेन इन एन एटम देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर देयर एंड such a orbital will have the very less energy difference, then such a type of two or more than two orbital combine with each other and forms same number of orbital, that is called the what, that is called hybrid orbitals, and this process is said to be the hybridization. देखते कि पहले तो लिखता हूं, when in an atom there are different types of orbital having different types of orbital having very less energy difference, very less energy difference, very less energy difference, such a type of two or more than two, such a type of two or more than two orbital combine and form same number of orbital combine and form same number of what, same number of orbitals, right? Orbital having similar shape and similar size, having similar shape and size, understand, as well as the energy, similar shape, size and energy and energies, right, which are called, which are known as hybrid orbital, which are known as hybrid orbital, orbitals, understand. अगर एग्जाम्पल लेते हैं और ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन. एक एग्जाम्पल लेता हूं कि पहले तो मैं कार्बन यहां पे लिखता हूं, तो यू ऑल नो दैट व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन. तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, राइट. एंड इफ आई वांट टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द एक्साइटेड स्टेट, राइट, इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 and 2pz1, अंडरस्टैंड. यहां पे देखो कि ये जो लिखा है ना, वह इन एन एटम, ये एक एटम है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, ये देखो यहां पे s और ये p, राइट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल s एंड p हैविंग वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि यहां पे एनर्जी डिफरेंस क्या है, बहुत कम है. क्यों? क्योंकि ये सेंटर है, n equals to 1, n equals to 2, 1 and 2. ये देखो 1 में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, और 2 में इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, 1 2 3 and 4, अंडरस्टैंड. तो इसमें एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि 2 में न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, सभी 4 इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस और रेडियस क्या है, सेम है, तो एनर्जी भी सेम ही होगी. तो लेस एनर्जी डिफरेंस, सच अ टाइप ऑफ 2 or more than 2 orbital, 2 or more than 2 orbital combine with each other and form same number of what, orbitals having a similar shape and energies, which are called hybrid orbital. उसको हम क्या बोलते हैं, hybrid orbital. One thing that you have to remember, 2 or more than 2 orbital combine with each other, right? Is it clear? तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए. तो आज हम पढ़ेंगे हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस आर देयर.
बेसिकली यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में हमको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। पहले तो sp3, देन sp2 एंड देन sp। चलो देखते हैं वन बाय वन। पहले ये नोट डाउन कर लो। ओके चलो पहले तो देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेट अस डिस्कस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहले तो शेप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। चलो तो पहले तो sp3 किसको बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन that means basically you can say that one electron from s orbit and 3 electron from p orbit combine with each other and forms a what? Hybrid orbitals. But if you want to write down the definition, then how you can write down? See, in the excited state, the carbon atom, the 4 electrons are present in the outermost orbit, in which 1 electron from s orbit and 3 electron from p orbit, total 4 electron combine with each other and forms a what? Similar energy and similar what? Similar energy and similar size or shape, right? And that is called the sp3 hybridization. So I write down in the excited state, in the excited state, right? In the excited state of carbon having electronic configuration of carbon atom, right, having electronic arrangement in outermost orbit, having electronic arrangement in outermost orbit, in the outermost orbit or orbitals from which outermost orbitals from which 1 electron from 2s orbit, 1 electron from 2s orbit and 3 electron from 2p orbit and 3 electron from 2p orbital combine with each other and forms 4 hybrid orbital. Total 1 electron from 2s orbital and 3 electron from 2p orbital, total 4 electron combine each other and form 4 hybrid orbital is known as having similar energy and shape known as what? Known as sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं हम? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे देखो, अगर ये कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 है, उसकी एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो यहां पे मैंने लिखा है कि इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन एटम हैविंग एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल फ्रॉम व्हिच 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s, एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल का और 3 इलेक्ट्रॉन किसका? 2p ऑर्बिटल, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद ईच अदर हैविंग अ सिमिलर शेप एंड सिमिलर साइज व्हिच इज नोन एज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे s का 1 और p का 3, टोटल 4 कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म्स अ व्हाट? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बात हमको मालूम होनी चाहिए
कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसमें होता है, तो अल्केन सीरीज में, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड है ना तो उस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3. अंडरस्टैंड? नाउ द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू नो दैट sp3 हाइब्रिडाइजेशन विल बी टेक प्लेस इन द अल्केन सीरीज. अल्केन सीरीज, राइट? एंड अल्केन सीरीज का you have to know that what is the shape of that particular alkane series. उसका बॉन्ड एंगल कितना है, कैसे हाइब्रिडेशन होता है, वो सब आपको मालूम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है सभी ऑर्बिटल्स में, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, 3 और 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ, तो sp3. अंडरस्टैंड? s में 1 और p में 3. Understand? Now here the shape that is a tetrahedral. Understand? And the bond angle will be 100 bond angle that is 109 degree and 28 minutes. These things you have to remember. As for example अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि ये 1 2 3 and 4 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो कार्बन 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ. तो ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इसने 4, राइट? सो 4 कोवेलेंट बॉन्ड. तो इस कार्बन पे ये बॉन्ड एंगल है वो कितना आएगा, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, राइट? इसका शेप कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल, राइट? और उसके ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3. क्यों? क्योंकि कार्बन एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. एज फॉर एग्जांपल अगर मैं इथेन लेता हूं, इथेन मींस व्हाट, CH3 और CH3, राइट? तो यहां पे C1 2 3 और ये 1 2 3, अगर ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड. इसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड. ये बॉन्ड हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे. तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, काउंट करो, 3 + 3 6 + 1 7, राइट? तो अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन करे कि ये कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो sp3. क्यों? क्योंकि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, राइट? अगर डबल बॉन्ड हो गए तो sp हाइब्रिडेशन, sp2. एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गए बिटवीन द 2 कार्बन एटम, देन द हाइब्रिडेशन इज अ sp. अंडरस्टैंड? वो हम पढ़ते हैं, पहले ये देख लो. सिंगल बॉन्ड है, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का, दोनों शेयर करेंगे और उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, राइट? दैट वी कैन आल्सो से इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, एंड कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 7, राइट? और इसका शेप भी कौन सा आएगा, टेट्राहेड्रल. बिटवीन द टू बॉन्ड the bond angle will be 109 degree and 28 minutes. Understand? So all this we can say it as a which hybridization, sp3. And sp3 hybridization will be take place in which series, alkane series. alkane का common general molecular formula हमको मालूम है कि alkane that is a CnH2n plus 2. Understand? Is it clear? उसका bond angle कौन सा है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए. चलो लिख दो. चलो अब हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां पे देखो sp2, राइट? ये रब करता हूं. सेम डेफिनेशन, इन द एक्साइटेड स्टेट कार्बन एटम हैविंग एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आउटरमोस्ट ऑर्बिट फ्रॉम व्हिच वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिट एंड नॉट 3, 2 इलेक्ट्रॉन from 2p orbit, total 3 electron combine with each other and forms a same number of what, hybrid orbital, that is called the what, sp2 hybridization. कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2. sp2 hybridization means ये इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, राइट? सो sp2 means कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, s का 1 और p का 2. ये 2pz वाला जो इलेक्ट्रॉन है
it is not taking a part in the formation of hybridization. Why? Because its energy is not same. उसकी एनर्जी और उसका जो शेप है वो सेम नहीं होता, तो इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट होता नहीं है 2pz वाला। अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इस हाइब्रिडेशन को क्या बोलते हैं हम, sp2 हाइब्रिडेशन। ये किसमें होता है, तो अल्कीन सीरीज। कौन सी सीरीज, अल्कीन सीरीज। अंडरस्टैंड, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n। अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर? देन आफ्टर यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द शेप, तो पिरामिडल शेप इज अ पिरामिडल, राइट? देन बॉन्ड एंगल, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, दैट यू हैव टू नो, दैट 120 डिग्री। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि इसका एग्जाम्पल देखो, इथीन लिखता हूं मैं, इथीन। इथीन मींस बिटवीन द टू कार्बन एटम डबल बॉन्ड इज देयर, सो अगर आई राइट हियर 1 2, यहां पे डबल बॉन्ड, ये 1 2 H H H H। लास्ट वीडियो में हमने ऐसा पढ़ा कि ईच एंड एवरी कार्बन इज ज्वाइंट विद द 4 बॉन्ड। सी, ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन भी 1 2 3 और 4। अभी यहां पे कोई आपको ऐसा पूछे कि ये दूसरा बॉन्ड आया कहां से, तो ये पाई बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा 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 और सिग्मा। और ये वाला जो है ना, ये पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किसने बनाया, कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता, वो क्या करता है, कार्बन कार्बन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, राइट? तो ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए कि पाई बॉन्ड किसने बनाया। अगर अभी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन करे कि ये कार्बन पे हाइब्रिडेशन कौन सा है, तो ये कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाता है, तो इसके ऊपर हाइब्रिडेशन कौन सा आया, sp2। ये कार्बन भी sp2, क्यों? क्योंकि ये कार्बन भी पाई बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन भी पाई बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने के लिए वो शेयरिंग करता है, राइट? कौन सा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2pz वाला, जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता। अंडरस्टैंड? तो ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो उसका शेप कौन सा होगा, इथीन। एंड दिस हाइड्रोकार्बन वी कैन से इट इज अनसैचुरेटेड। वो जो सिंगल बॉन्ड था ना, उसको सैचुरेटेड बोलते हैं, इसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, राइट? अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है, तो उस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा, sp2, in which we can say the one is a sigma and one is a pi bond। pi bond कौन बनाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है, राइट? तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, तो नोट डाउन कर लो। चलो, चलो अब देखते हैं sp हाइब्रिडेशन। अब sp हाइब्रिडेशन में क्या आएगा, sp means what, in the excited state carbon atom having an electronic configuration in which one electron from 2s and not 2, only one electron from 2p orbital, total 2 electron combine with each other and forms a 4, not 4 but 2 hybrid orbital having a similar energy and similar shape is known as a sp hybridization। कौन सा हाइब्रिडेशन, sp। तो यहां पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं होगा, तो यहां पे sp आ गया, s और p, s का एक और p का एक, राइट? ये किस में दिखाई देगा, तो अल्काइन सीरीज। कौन सी सीरीज, अल्काइन सीरीज, इन विच द इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन CnH2n-2। अंडरस्टैंड? दूसरी बात कि ये यहां पे देखो कि दो इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं होते, राइट? तो वो क्या बनाएंगे, तो दो पाई बॉन्ड बनाएंगे बिटवीन द टू कार्बन एटम। सो वी कैन से दैट द शेप इज अ लीनियर। उसका शेप कौन सा आएगा, लीनियर। देन बॉन्ड एंगल वी कैन से बॉन्ड एंगल दैट इज अ 180 डिग्री। ओके, एग्जांपल लेते हैं, इथाइन लेता हूं मैं, इथाइन। इथाइन मींस व्हाट, सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, यहां पे एक H और यहां पे भी एक H। क्यों एक एक H,
क्योंकि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी, राइट। सो यहां पे देखो ये सिग्मा और सिग्मा, और ये दोनों दो जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, अंडरस्टैंड। तो दो पाई बॉन्ड बने, किसने बनाए, कि जो 2pz और 2py वाला जो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता वो क्या बनाता है, दो पाई बॉन्ड बनाता है, राइट। और अगर कार्बन कार्बन के बीच दो पाई बॉन्ड है तो उस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा, sp, उस कार्बन पे sp, अंडरस्टैंड। So all these things you have to remember, their shape, their bond angle, their series, all these things you have to know. Okay? चलो लिख दो ये। चलो अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां पे पहले तो sp3 then sp2 and then sp, अंडरस्टैंड। तो यहां पे देखो कि sp3 वाला पहले तो देखता हूं कि sp3 में अल्केन सीरीज है, कौन सी सीरीज, अल्केन सीरीज। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, बिटवीन इन विच कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। दिस वी कैन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको सैचुरेटेड भी बोलते, राइट। एग्जाम्पल लेते मीथेन, इथेन, राइट, ये सब एग्जाम्पल हो गए। देन बॉन्ड एंगल कितना आएगा, तो बॉन्ड एंगल हमको मालूम है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। देन शेप कौन सा, टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल, राइट। देन आफ्टर बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ that is 154 picometer, right, these things you have to remember. Then between carbon and hydrogen bond length that is 112 picometer, understand. So all these things you have to know, and this is all about the sp3 hybridization. Okay, तो ये सभी बात आपको मालूम होनी चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कोई पाई बॉन्ड बनाता नहीं है। sp2 में क्या आएगा, अल्कीन सीरीज, अल्कीन सीरीज इन विच कार्बन कार्बन के बीच कौन कितने बॉन्ड होंगे, दो, एक सिग्मा और एक पाई। इसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल क्या आएगा, इथीन, देन प्रोपीन, ये सब एग्जाम्पल। बॉन्ड एंगल कौन सा आएगा, बॉन्ड एंगल तो 120 डिग्री, उसका शेप पिरामिडल। देन आफ्टर बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उनके बीच में बॉन्ड लेंथ दैट इज 134 पिकोमीटर, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। और लास्ट में C' बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी, तो इसके अंदर 110 पिकोमीटर, अंडरस्टैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द sp2 hybridization. Now sp किस में दिखाई देगा, alkyne series, right. Between carbon carbon how many bond is there, triple bond, right. This is also you can say unsaturated hydrocarbon, understand, right. Ethyne, propyne, okay. Then bond angle कौन सा आएगा, 180 डिग्री, राइट। यहां पे शेप कौन सा आएगा, तो लीनियर। देन बिटवीन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, बॉन्ड लेंथ तो 120 पिकोमीटर, ओके। एंड लास्ट वन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन द बॉन्ड लेंथ दैट इज 108 picometer, okay. So all these things you have to know. This is all about the sp3 sp2 and sp hybridization. अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है
और अगर आपको ऐसा पूछा है कि इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करो, इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फाइंड आउट करो, तो आपको आना चाहिए। ओके, पहले ये नोट डाउन करो, फिर बाद में थोड़े बहुत एग्जांपल देखते हैं। ओके, चलो चलो थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। राइट द hybridization of carbon atom and number of pi bond and sigma bond, ये हमको लिखना है। अगर मैंने ये पहला ऐसा दिया है कि CH3CN ऐसा है, और अगर मैंने ऐसा पूछा कि इसके अंदर देखो, पहले तो ये जो फॉर्मूला है ना उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, तो H H और H। इज इट क्लियर? क्योंकि हर एक कार्बन के साथ कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4। तो ये देखो 3 और 4, ये 4। ओके, तो ये कार्बन के अंदर हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp3। और ये कार्बन के अंदर 2 पाई बॉन्ड बनाता है, तो उसके ऊपर हाइब्रिडेशन कौन सा आया? sp हाइब्रिडेशन। अंडरस्टैंड? Now if I want to find out the sigma and pi bond, then how many sigma? 1 2 3 4 and 5. So sigma bond कितने आए? तो 5। और pi bond कितने आएंगे? तो pi bond 1 और 2, तो 2 pi। Understand? So this is how you have to find out all these things. अगर दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर मैंने ऐसा पूछा कि CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है, तो पहले तो ये लिख दो C1 2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C1 and 2, यहाँ पे H H H और H। हर एक कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, देख लो, 2 और 2, 2 और 2, 2 और 2। अंडरस्टैंड? तो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन 1 पाई बॉन्ड बनाता है, तो sp2। ये कार्बन 2 पाई बॉन्ड बनाता है, तो sp। ये कार्बन 1 पाई बॉन्ड बनाता है, तो sp2। अंडरस्टैंड? और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड तो 1 2 3 4 5 6, तो सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे? तो 6। एंड पाई बॉन्ड कितने आएंगे? तो 2। अंडरस्टैंड? सो दिस इज हाउ। नाउ ऐसे ही कई एग्जांपल मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा जो आपको अपने आप करने पड़ेंगे। राइट? और अगर उसमें कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दो कि फिर से एक्सप्लेन करो, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो इन दिस वीडियो अप टू हियर इट्स इनफ। थैंक यू वेरी मच।